اچھا چلیں جی، میں بات کرتی ہوں کہ نفسیات اور سائنس کا آپس میں کیا لنک ہے۔ جو سائنس ہوتی ہے نا بیٹا، یہ پہلے جو ہوتی ہیں، پہلے یہ آبزرویشن، ٹھیک ہے، مشاہدے، اس کے بعد یہ شہادتیں سے مراد ہوتا ہے کہ وہ جب آپ تجربات کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان دونوں کی مشاہدے اور تجربات کی روشنی میں حقائق کا جو تعین کرتی ہے وہ سائنس ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جو سائیکالوجی ہے، وہ چونکہ ہم اس میں اسٹڈی کرتے ہیں انسان کو، سائیکالوجی از اے اسٹڈی آف مینٹل پروسیس اینڈ بیہیویئر، تو بالکل اسی طریقے سے سائنس بھی جو ہے نا، جس طرح سائنس پریڈکشن بھی کر سکتی ہے، اسی طرح سے جو سائیکالوجی ہے وہ بھی پریڈکشن کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ سائنس جس طرح پہلے مشاہدہ کرتی ہے، پھر آرگنائز طریقے سے تجربات کرتی ہے، حقائق کو پرکھتی ہے، پھر نتائج نکالتی ہے، اور پھر اس نتائج کی بنا پر وہ پریڈکشن کر دیتی ہے، پیشین گوئی کر دیتی ہے کہ یہ آئندہ ایسے ہوگا۔ بالکل اسی طرح نفسیات بھی جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے کہ پہلے وہ مشاہدہ کیا جاتا ہے، پھر تجربہ کیا جاتا ہے، پھر حقائق کو تجربات کے مطابق کرنے کے بعد ایک نتائج ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے، اور نتیجہ نکالنے کے بعد یہ پریڈکشن کر دی جاتی ہے کہ یہ جو کام ہے یہ مستقبل میں اس فرد کا کردار کیسا رہے گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی ہے؟ بالکل وہی سٹیپ جو کہ سائنس جو ہے فالو کرتی ہے، اسی قاعدے قوانین پر نفسیات بھی عمل پیرا ہوتی ہے، لہٰذا اسی لیے سائیکالوجی از اے سائنس۔ ٹھیک ہے، نفسیات بحیثیت ایک سائنس کے انسانی رویوں کو سمجھنے، ضبط میں لانے یعنی کنٹرول کرنے، اور اس کی پیشن گوئی کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ جو نفسیات ہے، سائیکالوجی ہے، اس کا طریقہ کار جو ہے وہ سائنسی ہوتا ہے، اور یہ مختلف عوامل کو دوران تجربہ کنٹرول بھی کرتی ہے۔ جیسے اب آپ کی کلاس ہو رہی ہے، اگر باہر سے کوئی بہت زیادہ شور آئے تو میں کوشش کروں گی کہ میں اس کو کنٹرول کر لوں، کوئی تجربہ اگر آپ پہ کیا جا رہا ہو، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا جی، اور حاصل کردہ جو معلومات ہوتی ہیں، ان کو یہ بار بار سائنس بھی چیک کرتی ہے، نفسیات بھی چیک کرتی ہے، اور ان کو معروضی انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ معروضی انداز بیٹے وہ ہوتا ہے جس میں کوئی تجربہ کسی انسان پہ کر رہی ہوں، لیکن میرے اپنے خیالات، احساسات اس پر اثر انداز نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کو معروضی تجربہ کہتے ہیں۔ بی ایس سی 135 اور مومنا، آپ لوگ بار بار مائک کو ان میوٹ کریں، ان کو میوٹ کر لیتے ہیں۔ بیٹے میری آواز آ رہی ہے؟ مومنا آپ کیوں بار بار وہ کر رہی ہو اس کو میوٹ ہے؟ مومنا کی جو فرینڈ ہے وہ اسے میسج کرے کہ اس کو ان میوٹ کریں۔ بیٹا ایک دفعہ جب لیکچر سٹارٹ ہو جاتا ہوتا ہے تو دور ہو جایا کریں کمپیوٹر سے، اپنی ہینڈ فری لگا کے اپنے کمپیوٹر سے دور ہو کے بیٹھ جایا کریں، تاکہ آپ کا ہاتھ بار بار جو ہے وہ میوٹ نہ کرے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا چلیں، بس سمجھ آ گئی ہے نفسیات اور سائنس کا لنک آپس میں۔ اب ہم نے اسکوپ آف سائیکالوجی کرنا ہے، اور حسب معمول وہ بھی آپ پڑھ کے نہیں آئے ہوں گے کیونکہ آپ کہتے ہیں اب یہ بک کی پرچیز نہیں کی۔ نفسیات کا جو اسکوپ ہے یا وسعت ہے یا دائرہ کار ہے بہت وسیع ہے۔ نفسیات کے شعبے میں جو فرد کام کرتا ہے نا بیٹے، پیشہ ورانہ سطح پر یا اس شعبے میں کوئی ریسرچ کا کام کرتا ہے، وہ ماہر نفسیات ہوتا ہے۔ اب نفسیات وہاں پر ہے جہاں جہاں انسان ہے، اور آپ کو پتہ ہے زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں انسان نہ ہو۔ نمبر 1 پہ ماہرین نفسیات فرد کے ذہنی اعمال اور سماجی کردار کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔
ठीक है, जो पहला इसका स्कोप है वो ये है कि नफ्सियात फर्द के ज़हनी अमाल और समाजी किरदार को समझने की कोशिश करती है। नंबर 2, नफ्सियात उज़वियाती और बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है उसको भी समझने की कोशिश करती है। नंबर 3, इंसानी किरदार और ज़हनी अमाल की दरियाफ्त भी नफ्सियात का ही दायरा कार में आते हैं। और ये जो ज़हनी अमाल के दायरा कार में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इदराक, वकूफ़, तवज्जो, रुझानात, सहानत, जुबानदानी, मुहर्रकात, दिमागी अफ़ाल वगैरह वगैरह, ये तमाम प्रोसेस जो है इन सबको नफ्सियात अंडरस्टैंड करती है। मेरी आवाज आपको सही आ रही है कि वो ब्लर हो रही है? बीच में ब्लर हो रही है ना, कभी कभी मुझे भी लग रहा है। अब देखिएगा, हाँ जी, नंबर 4 फिर इसका स्कोप स्कोप जो आ जाता है, बेटा ये हो रही है थोड़ी ब्लर सी हो रही है। अब देखें, आपकी भी ऐसे ही कभी कभी महसूस हो रही है, शायद आज नेट का कोई प्रॉब्लम है। मोमना की जो फ्रेंड है वो उसे कहें कि उस अपना माइक वो जो है वो अनम्यूट करे, वो म्यूट करके बैठी हुई है। हाँ जी, उसको दोबारा कहें। स्क्रीन पे आपको भी नजर आ रहा होगा कि मोमना ने अपना माइक जो है वो म्यूट किया हुआ है, उसे कहें अनम्यूट करे इसे। अच्छा, चौथा जो इसका दायरा कार है, चौथा स्कोप ऑफ साइकोलॉजी है, वो ये है कि ये लोगों के माबैन एक दूसरे के इंटरेक्शंस, तामुल का मुतालिया करती है। तामुल क्या होता है बेटे? एक दूसरे के साथ ताल्लुक होता है, ठीक है। जब आप दो लोग आपस में मिलते हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं, आपका तरीका कार क्या है, आप बात दूसरे की सुनते हैं, अपनी सुनाते हैं और दोस्तियां बनाते हैं, बातचीत करते हैं, दीज आर ऑल इंटरेक्शंस, ठीक है, इनको स्टडी करती है। फिर पांचवा इसका स्कोप साइकोलॉजी का ये है कि नफ्सियात बैनल शख्सी ताल्लुकात को भी स्टडी करती है। एक होते हैं शख्सी ताल्लुकात जो एक फर्द के दूसरे के साथ होते हैं, जो बैनल शख्सी ताल्लुकात होते हैं ये एक कौम के दूसरी कौम के साथ जो ताल्लुकात हैं इनको भी स्टडी करने में नफ्सियात मददगार होती है। फिर इसके अलावा इसका एक और फायदा ये है कि ये इल्लतो मालूल, यानी जब आप तजर्बा कर रहे होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी करने में नफ्सियात हमारी मदद करती है। क्योंकि जब कोई इफेक्ट आता है तो उसकी कॉज जरूर होती है। बादल आते हैं तो ही बारिश होती है, ठीक है। गाली दी जाएगी तो ही गुस्सा आएगा, ऐसे ही है ना, कॉज एंड इफेक्ट का वो हो गया ना। तो नफ्सियात इल्लतो मालूल को भी स्टडी करती है, यानी कॉज एंड इफेक्ट को भी स्टडी करती है। फिर नफ्सियात का एक और स्कोप ये है कि ये जहनी सेहत के मसाइल को समझने या ख़त्म करने के लिए भी इसका ताल्लुक है। और आपको पता है कि जहनी सेहत के मसाइल इंसानों को होते हैं, जानवरों को तो नहीं होते। फिर जी उस पर भी ये फोकस करती है। फिर इसका नंबर 7 अगर आप इसका स्कोप देखें तो इसका जो सबसे अहम मकसद है वो सोसाइटी को फायदा देना है। यानी एक फर्द को दूसरे फर्द के लिए ऐसा बना दिया जाए कि वो हर अफराद दूसरे के लिए फायदा मंद हो। सोच को चेंज करना, ठीक है, किरदार को चेंज करना, रवैयों को चेंज करना, फायदा मंद तभी हो सकते हैं ना। और इसका 8वां जो स्कोप है वो ये है कि इलाज मुआवजा करना, ट्रीटमेंट देना। किन लोगों को ट्रीटमेंट देना? जो साइकोलॉजिकली या डिस्टर्ब लोग हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, एंजाइटी का शिकार हैं, या उन्हें कोई जहनी अमराज हैं, उनको हेल्प करना स्कोप ऑफ साइकोलॉजी का 8वां वो मेन काम है। फिर जी एक 9वां इसका जो स्कोप है वो ये है कि ये अपने इन तमाम कामों के साथ साथ दीगर जो फील्ड्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, वहां पर ये खिदमात सर अंजाम दे रही है बिटवीन मालक के आजर और अजीर के। समझ आ रही है 4th ईयर?
हाँ जी, इसका स्कोप जो है वो सनती नफ्सियात में भी है, और आपको पता है कि सनती नफ्सियात में सनती जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, पाकिस्तान में तो उसका नहीं है अभी भी स्कोप कोई भी, लेकिन बाहर के ममालिक की जो सनतें होती हैं उन्होंने इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट रखे हुए होते हैं जो कि बिटवीन उसके मालक और मजदूर के दरमियान ताल्लुकात कायम करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जब मालक और कारकुन के दरमियान अच्छा ताल्लुक होगा तो वो सनत जो है वो तरक्की भी करेगी। और इसी तरह सनती नफ्सियात के साथ साथ और दीगर शोबाजात हैं, जैसे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में ये हेल्प करते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी, रिसर्च, और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी और कॉलेज की सतह पर पढ़ाने में भी ये मददगार साबित होती है। अगर हम ओवरऑल देखें ना तो हमारा जो ये साइकोलॉजी है इसका स्कोप जो है वो बेहद वसी है। मैंने बात ही वहां पे खत्म कर दी है क्या है कि जहां जहां इंसान है वहां वहां नफ्सियात का दायरा कार मौजूद है। सबसे पहला तो इसको आप यही लिखिएगा, ठीक है? समझ आ गई है? दायरा कार का होता है कि इसकी अप्रोच किधर किधर तक है। तो जहां जहां इंसान है, और आपको पता है पूरी दुनिया में जहां जहां इंसान है वहां वहां इसका दायरा कार है। इसके अलावा जी रिसर्च में भी ये बड़े अहम तरीन अपने फराइज सर अंजाम देती है, और इसके साथ साथ अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट भी हैं, उसमें अप्लाइड साइकोलॉजी में भी ये बड़ी मुआवन और मददगार है, ताकि लोग जो है वो जो अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट हैं वो मुशाहिदात करें, तजर्बात करें, और फिर देखें कि फ़र्द के रोज़मर्रा मसाइल को कैसे डील किया जा सकता है। यानी ज़िंदगी के हर शोबे में नफ्सियात का स्कोप मौजूद है। आ गई है समझ बच्चे? बेटे बीए के बाकी बच्चे किधर हैं मेरी क्लास के? ये तो 2-4 ही हैं। हादिया किधर है? हादिया, अच्छा आप हादिया हैं। जो बच्चे बेटे क्लास नहीं ले रहे काइंडली उन्हें कहें कि क्लास लें, ठीक है? फिजा बेटे कर दे ऐड उसको। 251 है, 250, 259 देखिए उसका मैसेज अगर आया तो उसे ऐड कर दें। चलें जी, ये तो हो गया इसका अब स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। अब हम इसकी डेफिनेशंस की तरफ बढ़ते हैं कि साइकोलॉजी को मुख्तलिफ मुफक्किरीन ने कैसे डिफाइन किया है। विलियम जेम्स के मुताबिक नफ्सियात इंसान की ज़हनी और अमली ज़िंदगी के मुताले का नाम है। इसका मतलब है कि फ़र्द की इंसानी यानी ज़हनी ज़िंदगी और अमली प्रैक्टिकल लाइफ जो है उसको जब आप स्टडी करते हैं, मेंटल प्रोसेस एंड प्रैक्टिकल लाइफ को, तो जो है वो साइकोलॉजी, वो विलियम जेम्स ये कहता है कि विलियम जेम्स के मुताबिक नफ्सियात इंसान के ज़हनी और अमली ज़िंदगी के मुताले का नाम है, जबकि स्किनर ये कहता है कि नफ्सियात हर माहौल में इंसान के इस किरदार, रद्द अमल और रवैये का नाम है जो ज़िंदगी पेश करती है। हर माहौल, हर बंदे का माहौल डिफरेंट होता है बेटे। हर माहौल में इंसान के इस किरदार, रद्द अमल और रवैये का नाम है जो जिंदगी पेश करती है, उसमें इसका ताल्लुक इंसान के सोचने, महसूस करने और अमल करने से है, ठीक है? फिर तीसरी डेफिनेशन जेबी वॉटसन ने कर दी है। जेबी वॉटसन के नजदीक नफ्सियात किरदार और तजर्बे के मुताले का अमल है। नफ्सियात किरदार और तजर्बे के मुताले का अमल है। फिर जो अगली डेफिनेशन है वो लिंडजे ने की हुई है। लिंडजे के मुताबिक नफ्सियात किरदार के साइंसी मुताले का नाम है जिसमें तमाम सरगर्मियां, मसलन कौन सी सरगर्मियां? हरकी सरगर्मियां, फेलियाती रद्द अमाल और जहनी सरगर्मियां शामिल हैं।
जब आप ये देखेंगे ना तो ये तकरीबन कमो बेश ये सारी चीजें एक ही डेफिनेशन, एक ही चीज को एक्सप्लेन कर रही हैं। साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ मेंटल बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर। थोड़ा डीपली डीपली इनको देखेंगे ना तो फिर समझ आएगी। विलियम वॉन्ट के नजदीक नफ्सियात वो इल्म है जो एहसासात, तासुरात और कुव्वत इरादी का मुतालिया करता है, और मैकडुगल के मुताबिक नफ्सियात इंसानी ज़हन और किरदार का मुतालिया करती है। समझ आ गई है? ये डेफिनेशन आपने 2 या 3 इसमें से अच्छी अच्छी याद कर लेनी है। जो डेफिनेशन मैं बार बार आपके साथ शेयर करती हूँ वो फ्लॉयड एल रुश की है। रुश की डेफिनेशन है साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर। अब नफ्सियात के मकासद, जिन्होंने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी साइकोलॉजी, उन्हें पता होगा कि हर सब्जेक्ट के मकासद होते हैं। ठीक है, कोई सब्जेक्ट भी बगैर मकसद के नहीं होता, कोई काम भी बगैर मकसद के नहीं होता। ठीक है, आपको भूख लगी हो तो आप डेफिनेटली फिर किचन में जाएंगे ना, अपने लिए सालन बनाएंगे, आप रोटी बनाएंगे, तो इसका मतलब है भूख आपका मकसद था जिसकी वजह से आपने सारा काम किया। ये कोई भी जिंदगी का काम बगैर मकसद के नहीं होता। इसी तरह नफ्सियात के भी कुछ मकासद हैं। बेटे ऐड हो गई वो? हाँ जी, मैंने उसको ऐड कर लिया है, तो उसे कहें क्लास ले। अब कहाँ है वो? है, उसको मैसेज कर दें बच्चे। नहीं, मुझे अभी किसी बच्ची ने बताया कि उसको ऐड करें, मैंने कर दिया है उसको ऐड। अच्छा जी, हमारा ये बेटे ऑनलाइन का पर्पस ये है कि मैक्सिमम बच्चों को घर बैठे फायदा हो जाए। ठीक है, हमने तो अपनी ड्यूटी देनी देनी है मेरे बच्चे, तो फिर ज्यादा से ज्यादा लोग क्यों ना इससे फायदा उठाएं। इसलिए बार बार आपको कहा जा रहा है कि क्लासेस ज्वाइन करें। हाँ जी, नफ्सियात के जो है ना वो 4 मकासद होते हैं। हम ये जो साइकोलॉजी है ना ये 4 मकासद पर काम करती है। नंबर 1 बिहेवियर डिस्क्रिप्शन, यानी किरदार को बयान करना। नंबर 2 बिहेवियर एक्सप्लेनेशन, उस किरदार की वजाहत कर देना जो भी किरदार है। नंबर 3 साइकोलॉजिकल प्रिडिक्शन, फिर उस किरदार की जब आप वजाहत कर देते हैं तो उसकी बिना पर हम पेशेन गोई कर देते हैं। नंबर 4 बिहेवियर कंट्रोल, यानी उस किरदार को आप कैसे कंट्रोल करेंगे जो कि दूसरों को तकलीफ दे रहा है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा मैं एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो बयान करना होता है ना किरदार, नफ्सियात का पहला मकसद ये है कि किरदार को ठीक ठाक मुशाहिदा करके बयान कर दिया जाए। ठीक है, बयान करने से क्या मतलब है? मतलब ये है कि देखा जाए कि फर्द के उज़विया या फर्द के किरदार का मुशाहिदा किया जाए, देखा जाए कि किन शराइत के तहत ये किरदार इसका वकूफ़ पज़ीर होता है। सपोज हम रख लेते हैं एंगर को, कि गुस्सा कब चढ़ता है। ठीक है, इसको इस जहन में रखें, फिर इन सब पॉइंट्स को आप पढ़ेंगे ना फिर समझ आ जाएगी। अब मैंने किरदार बयान कर दिया, मैंने मुशाहिदा भी कर लिया, मैंने बयान किया कि जी ऐसी सूरत हाल होती है तो एंगर जो है ना वो गुस्सा आ जाता है। आगे मैंने बिहेवियर को एक्सप्लेन करना है। नफ्सियात अपने आप को काबिल फहम मालूमात नहीं, नफ्सियात ये भी देखती है कि किरदार किस तरह वकूफ़ पज़ीर होता है, यानी गुस्सा कितना आता है और किन मौकों पर आता है, और इन रद्द अमाल की वजूहात को भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक ऐसी वजह जिस पर कि एक फर्द बहुत शदीद गुस्से में आ जाता है, क्या दूसरा फर्द भी इसी सूरत हाल से अगर 2-4 किया जाए तो गुस्से में आएगा? ठीक है ना, इसको भी ऑब्जर्व किया जाता है। एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि फर्द का किरदार किन वजूहात की वजह से गुस्से में, शदीद गुस्से में आ गया है। फिर मैं जी तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ती हूँ जिसमें मैं पेशेन गोई कर देती हूँ कि फर्द के मुस्तकबिल के किरदार के बारे में कि ये फर्द इंतहाई गुस्सीला है। क्यों मैंने ये प्रेडिक्शन कर दी? क्योंकि मुझे बिहेवियर डिस्क्रिप्शन और बिहेवियर एक्सप्लेनेशन पे इस काबिल कर दिया कि मैं जो है वो प्रेडिक्शन कर दूं। ठीक है, समझ आ रही है बच्चे? हाँ जी। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर अब बिहेवियर कंट्रोल है। अब मैंने उसको सजेशन देनी है
किरदार को कंट्रोल करना, कंट्रोल से मुराद है कि किरदार जो वकूअ पजीर होता है, इसे कैसे कंट्रोल करना है, कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाए, इसे शुरू कब होने देना है, इसे कितना कंट्रोल करना है और कितना आगे बढ़ने से इसको रोक देना है। इसके लिए फिर तरीके इख्तियार किए जाते हैं जिससे कि मखसूस किरदार को कंट्रोल किया जा सके। समझ आ गई है? नफ्सियात के बेटे 4 मकासद हैं। किसी भी किरदार को पहले बयान कर देना, फिर उस किरदार की वजाहत करना, फिर उस वजाहत की बिना पर पेशेन गोई कर देना, फिर पेशेन गोई के बाद होता है कि आप किरदार पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ये 4 तरीके, 4 मकासद नफ्सियात के होते हैं। अगर कोई फर्द जब कोई हेल्प लेने के लिए आता है किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, तो उसके वो ये 4 नफ्सियात के मकासद को जरूर मद्देनजर रखता है। ठीक है, चलें। अब आप लोगों को थोड़ा सा एक होमवर्क देना था, लेकिन आप लोग बुक खरीदेंगे तो फिर है ना। कल अब हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अप्लाइड एरियाज ऑफ साइकोलॉजी पढ़ना है, जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं। मैं तो बेटे आपको पढ़ाऊंगी, ज़रूर पढ़ाऊंगी, लेकिन बात ये है कि आपने जो है ना थोड़ी सी खुद भी कोशिश करनी है। आप 4th ईयर हैं और जो 4th ईयर क्लास होती है ना वो इस काबिल होनी चाहिए कि उसको थोड़ा सा जो है वो खुद से पढ़ने का उसे तरीका भी आना चाहिए। असाइनमेंट भी आपको मैं दे सकती हूँ, लेकिन असाइनमेंट मैं वसूल कैसे करूँगी ये मैं सोचूंगी अभी। लेकिन ये कि आपने अपनी 3rd ईयर की जो बुक्स हैं, 3rd ईयर के साथ इन टच ज़रूर रहना है। ये थोड़ी सी वो बातें हो रही हैं कि शायद 4th ईयर के पेपर होने लगे हैं ऑनलाइन। ठीक है, आपने भी सुनी होगी ये, तो हमें कुछ अभी नहीं इन्फॉर्मेशन है, लेकिन डेफिनेटली अगर वो जब कंडक्ट करने होंगे तो कॉलेज में इतला ज़रूर आएगी। जैसे आएगी मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों को, लेकिन फिर भी हमने अपना साजो सामान जो है ना वो तैयार ही रखना है। हम जंग की हालत में है ना इस वक्त कि हमारे पेपर नहीं हुए, हमें अभी गवर्नमेंट बता नहीं पा रही है, और हमने ऐसे ही है ना बेटे, सच तो यही है कि वो उनकी अपनी मजबूरियां हैं कि वो नहीं बता सक रहे, लेकिन हमने अपने आप को हर तरीके से तैयार रखना है कि जिस दिन वो डेट शीट हमें दे दें, हमारे पास अगर 10-12 दिन पहले डेट शीट आती है तो हमने बजाय डिप्रेशन का शिकार होने के, अगर हमने तैयारी की होगी तो फिर हमें कोई फिक्र की बात नहीं होगी। ऐसे ही है ना क्या? हाँ, तो देखे ना, अब ये अभी न्यूज चल रही है, हमें अभी कोई खबर नहीं आई है। ठीक है, आपने कोशिश करनी है बेटे कि आप अपने पेपर 3rd ईयर को इन टच रहना है उसके साथ। मेरा कहने का मकसद पता क्यों है, मैं इसलिए आपको बार बार बच्चे बता रही हूँ कि आप ये ना हो कि आप 4th ईयर की क्लासें लेते रहें और उसको इग्नोर कर छोड़ें। ऐसे नहीं करना, 4th ईयर की क्लासेस भी लें। अभी तो याद करने वाला इतना मामला नहीं, अभी तो समझने वाला मामला ज्यादा है। जब आपका चैप्टर 1 कवर हो जाएगा फिर आप याद कर लेना, लेकिन अभी समझने वाला मामला है क्योंकि बिल्कुल शुरू शुरू है। तो अभी आपने अपना 3rd ईयर के साथ इन टच रहना है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? चलें बेटा 209 को ऐड कर दें। मेरी ये बैटरी इसकी डाउन हो गई है। जी जी, जी जी, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि साइकोलॉजी अगर एक साइंस है तो इसको साबित करें। ठीक है, साइकोलॉजी अगर साइंस है तो इसका दूसरे मज़ामीन के साथ क्या लिंक है। ठीक है, और वैसे भी मैं आपको बताऊं। जी जी, हाँ जी, 1 मिनट बेटा, मैं जरा ना लैपटॉप की वो लगा लूं, चार्जिंग लो हो गई है, अभी बंद हो जाएगा ये। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप, सवाल दोबारा करें। जी बेटे, कहाँ से कहाँ? जी चल,
दोबारा करें बेटे, आपकी आवाज काट रही थी, अब करें मेरे से क्वेश्चन। आप हाँ जी, इसका सवाल कैसे आएगा, आप ये पूछना चाहते हैं? इसका सवाल अगर आएगा तो आएगा कि नफ्सियात अगर एक साइंस है, साइंस किसे कहते हैं, इसको प्रूव करें। ठीक है, तो आपने पहले साइंस की डेफिनेशन, फिर उसके बाद साइकोलॉजी और साइंस का लिंक, फिर नफ्सियात बतौर हयाती साइंस, नफ्सियात बतौर किरदारी साइंस, नफ्सियात बतौर मुआशरती साइंस तक डिस्कस कर देना है। और अगर आपको स्कोप ऑफ साइकोलॉजी आता है वो अलहदा से आएगा, तो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में इसके 8-9 स्कोप मैंने आपको बताए हैं, वो डिस्कस कर दें। और नफ्सियात की तारीफें अलहदा से एक टॉपिक है, हो सकता है वो लिखें, नफ्सियात को की तारीफ करें और नफ्सियात का दायरा कार या वुसअत बयान करें, ये किसी के साथ मिल के आ सकता है। फिर नफ्सियात के मकासद भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, हो सकता है कि इसके साथ भी जो है वो मसलन पूछें कि स्कोप पूछ लें, इसके डेफिनेशन पहले पूछ के तो फिर नफ्सियात के मकासद पूछ लें। इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं है अभी। ठीक है।